آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. مشیر خزانہ حفیظ شیخ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں کیا ہے اور ایکچویلٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے اس کا جواب فائنینس سیکرٹری صاحب آپ کو دے دیں گے. ابھی جہاں تک کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد دی گئی ہیں ایسی چیزوں میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن ہم اپنی جانب سے تو مراد دے سکتے ہیں اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مراد اور ان جو کنسیشنز ہے اس کا فائدہ لیں. تو ہم انکریج کریں گے ان کو کہ وہ جتنا جلد ان چیزوں سے فائدہ لیں، اور آج ہم نے مزید مراد دی ہے اس معاملے میں کیپٹل گینز ٹیکس کو کم کر کے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف پروگرام اور اس کے بارے میں کافی کوسچنز آپ لوگ اٹھاتے ہیں، تو میں واضح کر دوں کہ آئی ایم ایف دیکھیں اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کے لوگوں پہ ظلم کرے. آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے اقوام متحدہ کی طرح جس کو 200 یعنی ممالک پوری دنیا نے مل کے بنایا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ اگر کوئی ملک ایک اقتصادی دشواری میں مبتلا ہے اور ان سے بورو کرنا چاہتا ہے تو ان کا بورڈ ان کو دے سکتا ہے پیسے. وہ ایک بینک کی طرح ہے، اور ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی اپنے کلائنٹ کو پیسے دے کہ وہ ان کو اس حیثیت میں ہو کہ وہ انہیں واپس دے سکے. تو پاکستان اور آئی ایم ایف کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان پہ حکم کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ہر صورت میں تابعدار ہے کہ اسے وہ فالو کرنا ہے. آئی ایم ایف کا بنیادی موقف تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کے ساتھ چلیں، آپ کے پاس جتنی آمدنی ہے اس کے حساب سے اخراجات کریں، اور اگر کچھ مشکل فیصلے ہیں جو آپ نہیں کر پا سکے ہیں تو کریں. تو آئی تھنک اس کو ایک پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی ہے کہ اس کو عجیب و غریب انداز میں توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک مسلسل ڈائیلاگ چل رہا ہوتا ہے، جس طرح جو ہمارے دوسرے پارٹنر ہیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن آئی ایم ایف کی ایک مرکزی حیثیت ہے دنیا کے فائنینشیل نظام میں، اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ بھی دیکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ملک کا کیسا تعلق ہے، اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز بھی وضع کرتی ہیں. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ ہوا تو وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جا کے 1.4 بلین کی کنسیشنری لینڈنگ پاکستان میں اپنے بورڈ سے اپروو کرائی. اور یہ جو ڈسکشن ہے کہ ان کی نیکسٹ جو ہے ریویو کب ہوگی اور نیکسٹ ٹرانچ، تو اب ہم بجٹ سے فارغ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر آپ کو آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آپ کو تفصیل بھی بتا دیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ جی آپ کیا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا کر قیمتیں جو دنیا میں کم ہوئی ہیں ان سے ان کا فائدہ پبلک کو نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ 30 روپے ہے فی لیٹر میکسیمم، اس کو ہم نے نہیں چھوا ہے. وہ جو ہے وہی 30 روپیز جو ہے میکسیمم پہ برقرار ہے، اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو بدلنے کا. تو اس کو بھی یعنی اس طرح سے پیش کرنا کہ گویا کوئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو قیمت بڑھنے گھٹنے جا رہی ہے اس کو پبلک تک، بھئی آپ ریکارڈ کو دیکھیں نا. ہمیں تو بہت مشورے مل رہے تھے کہ جی آپ اتنا کیسے گرا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت، اس سارے علاقے میں کسی حکومت نے اتنا نہیں گرا ہے. تو اگر ہم چاہتے تو اس وقت بھی روک سکتے تھے. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ویژن کے تحت ہم نے کہا نہیں، ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت مشکل میں ہیں، خاص طور سے مڈل کلاس لوگ، ہمارے ایگریکلچر اس وقت جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں.
अपने क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया, और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है देखें, कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपने टारगेट्स फिक्स करे बेस्ड ऑन उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये तो एक उनका इख्तियार है ना, वो उसको यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और यही मेरा मैसेज था चीफ मिनिस्टर साहिबान से, कुछ से मेरी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, तो हमने उन्हें यही कहा कि आप अपने कॉस्ट कम करें, आप अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं, आप अपनी फोरकास्टिंग को जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं वो करें, और हमें और आपको मिल के कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कीमतें भी शामिल हैं जो कि सेंटर और प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन से ही हो सकती हैं। तो आई थिंक मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि रज़ाक साहब कुछ कहना चाहें तो कहें, अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो पोलाइटनेस में नहीं कहें, ठीक है ना जी। और हामिद अतीक साहब और आप जी प्लीज़। फिर मैं हमाद अजहर साहब से भी कहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके ऊपर कुछ बताएं जी। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है टैक्स एक्सपेंडिचर का, और ये कहा गया है कि इस साल इसका तखमीना 1.15 ट्रिलियन है। सर, ये मैं थोड़ी सी एम्बिग्विटी रिमूव करना चाहती हूँ कि ये इस साल का तखमीना नहीं है। पिछले साल हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 पास किया था, जिसके तहत टैक्स एक्सपेंडिचर को जाहिर करना था, जो उससे पहले आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। इससे और ये फर्स्ट टाइम बजट का एक हिस्सा बन के आया है। ये कि इट्स क्वाइट अ थिक बुक। तो मैं सबको कहूँगी कि आप उसको देखिए और उससे ये मत अखज़ कीजिए कि ये 1.15 ट्रिलियन सिर्फ इसी साल में टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं। जब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जम्पशंस दी जाने लगी हैं, उस वक्त से लेकर आज तक का ये कुल अमाउंट है। अब आप ऐसे अगर उस किताब को आप गौर से देखेंगे तो जहां जहां जिस एग्जाम्पशन को आप देखना चाहें फ्रॉम द डेट इट वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उससे आज तक देख सकते हैं कि किस वक्त ये आई और उसका ईयर बाय ईयर एडिशन इन द टोटल एग्जाम्पशंस क्या हुआ। तो इसको शायद इस तरह मिस रेट किया गया है, जैसे कि कहा गया कि पिछले साल शायद 900 बिलियन था और इस साल 101 ट्रिलियन और ऐड कर दिया गया है। ऐसे नहीं है। दूसरा सवाल था आपका एनपीओज के बारे में। तो इस दफ़ा एनपीओ की डेफिनेशन में भी चेंजेस लाई जा रही हैं। आप सबको पता है कि एनपीओज को 100% टैक्स क्रेडिट हासिल है। अब इसकी डेफिनेशन को अमेंड करके ऐसी चीज़ें इसमें सिर्फ वो इंक्लूड होंगी जिनका बेनिफिट जनरल पब्लिक को जाएगा। अब इसमें जो मेजर चेंज लाई गई है कि अगर कोई एनपीओ का एसोसिएट जो है वो अपना डोनेशन दे के अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये भी सोचा जा रहा है कि इसको एक दफ़ा अगर स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा तो 5 साल के लिए रहेगा। तो इन एनपीओ में जो मेजर चेंजेस इसी वजह से लाई गई हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्टेमरा इंजेक्शन 5 लाख रुपए में फरोख्त करने वाले गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में एक्टेमरा इंजेक्शन बरामद भी कर लिए गए हैं।
आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई की गई है। लाहौर में पुलिस ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्टेमरा इंजेक्शन 5 लाख रुपए में फरोख्त करने वाले गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार कर लिए। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कोरोना वायरस मुस्बत आ गया। यूसुफ रजा गिलानी कोरोना वायरस की वबा के दौरान तोशा खाना केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की आवाम से अपने वालिद के लिए दुआए सेहत की अपील। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी ने ट्वीट किया कि शुक्रिया इमरान खान, आपकी वजह से मेरे वालिद की जिंदगी खतरे में आ गई है। तो आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कोरोना वायरस टेस्ट भी मस्बत आ गया है। यूसुफ रजा गिलानी कोरोना वायरस की वबा के दौरान तोशा खाना केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की आवाम से अपने वालिद के लिए दुआए सेहत की अपील। साबिक कप्तान क्रिकेट शाहिद आफरीदी को भी कोरोना हो गया है। शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर तस्दीक कर दी है। जुमेरात से तबीयत खराब थी, ये कहना था शाहिद आफरीदी का। उन्होंने कौम से दुआओं की अपील की है। शाहिद आफरीदी लॉकडाउन में लोगों की खिदमत में काफ़ी मसरूफ रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं साबिक कप्तान क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी को भी कोरोना हो गया है। शाहिद आफरीदी ने इस बात की ट्विटर पर तस्दीक भी कर दी। उनका कहना था कि जुमेरात से उनकी तबीयत खराब थी। सिंध असम्बली का एक और रुकन कोरोना का शिकार बन गया। जीडीए से ताल्लुक रखने वाली रुकन नसीम राजपर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सिंध असम्बली का एक और रुकन कोरोना का शिकार बन गया। जीडीए से ताल्लुक रखने वाली रुकन नसीम राजपर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। ना खौफ खुदा और ना ही इंसानियत की फिक्र। पेशावर में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा भी ब्लैक में फरोख्त होने लगा। सेहतयाब मरीजों का प्लाज्मा 2 लाख से 10 लाख तक फरोख्त किया जा रहा है। ना खौफ खुदा है और ना ही इंसानियत की फिक्र है। पेशावर में कोरोना मरीजों का प्लाज्मा भी ब्लैक में फरोख्त होने लगा, जबकि सेहतयाब मरीजों का प्लाज्मा 2 लाख से 10 लाख तक फरोख्त किया जा रहा है। वजीर आजम ने लाहौर में कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम का कहना है लाहौर समेत जहां SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे, कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी बताएगा लाहौर शहर सील होगा या नहीं? देखिए जी, अभी एक इससे पहले मीटिंग हुई जिसके अंदर वजीर आजम को वजीर आला पंजाब ने ब्रीफिंग दी और सूरत हाल से आगाह किया और वजीर आजम ने उन्हें हिदायत की कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और पीर से सख्त इक़दाम करने की हिदायत की गई हैं। लेकिन अब से चंद लम्हे पहले बड़ी मीटिंग जो है जितने भी बड़े हैं उनकी ये स्टार्ट हो गई है। वजीर आजम इस इजलास को अब चेयर कर रहे हैं और इसके अंदर गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, NDM के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, ये तमाम लोग शरीक हैं और इसके अंदर जो 2 हफ्तों की लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है वो ज़ेरे गौर है, जबकि टिड्डी ऑपरेशन के हवाले से भी मामला देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ 2 हफ्तों का लॉकडाउन है जो इस मीटिंग के अंदर ज़ेरे बहस है और तवक्को है कि आज लॉकडाउन के हवाले से कोई बड़ा फैसला सामने लाया जाएगा। कोई बड़ा फैसला ही सामने आएगा। कजाफी शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हैं। 24 घंटों में 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तादाद 1,32,405 हो गई है। मजीद 88 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 2,551 तक जा पहुंची। कोरोना से 50,056 लोग सेहतयाब हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हैं। 24 घंटे में मजीद 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 816 हो गई है, जबकि 2,262 नए मरीजों के साथ 51,518 हो गई है। सिंध के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 816 हो गई।
गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान हुकूमत ने होटल और रेस्टोरेंट खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया। आज नोटिफिकेशन वापस लेकर दोबारा होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए। गुज़श्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था, और आज ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और दोबारा से होटल और रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जिसमें होटल और रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया गया था। कोरोना के शिकार मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ कराई गई। लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर कारकुन जमा हुए, रिहाइशगाह के बाहर गुलदस्ते भी रखे गए। आपको बता रहे हैं कि कोरोना के शिकार मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ कराई गई और लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के बाहर कारकुन जमा हुए, रिहाइशगाह के बाहर गुलदस्ते भी रखे गए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और शहबाज शरीफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने शहबाज शरीफ को कोरोना के इलाज के लिए ताउन की पेशकश भी की। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की ये मोहब्बत, एहसास और वाबस्तगी मेरे लिए सरमाया इफ्तिखार है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है और शहबाज शरीफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कोरोना के बढ़ते केसेस पर आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को मुकम्मल सील कर दिया गया है। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं शाहजेब अफजल से। शाहजेब बताइएगा। आज़ाद कश्मीर भर में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के बायस स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करके एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका आज दूसरा रोज़ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव आए हैं, जिसके बायस मुजफ्फराबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद में तमाम दाखिली और हाजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जो बाहर से आने वाली ट्रांसपोर्ट को रोक रही है। और दुकानों की बात की जाए तो मुर्गी, गोश्त और मछली की दुकानों को सिर्फ हफ्ते में 2 दिन खोलने की इजाज़त दी गई है और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रैंडम चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म ना हो सका। शहरियों को सस्ते पेट्रोल की बजाय महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली से तफसीलात जानते हैं। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें जीटी रोड, इसके अलावा डेविस रोड, शहर का शिमाली इलाका और इसके अलावा जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम जेल रोड पर वाक़े सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले PSO पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर गुज़श्ता 10 रोज़ से शहरियों को सिर्फ हाई ऑक्टेन डलवाने पर मजबूर किया जा रहा है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप पेट्रोल डलवाने आए हैं यहाँ पे? सर, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं इनके पास आया हूँ। कहते हैं जी चुप करके डलवा लो, 127 रुपये लीटर पेट्रोल दे रहे हैं हम। मैंने कहा यार गवर्नमेंट तो 176 रुपये किया। कहता है जाके इमरान खान को पकड़ो, इमरान खान देगा, हम नहीं देंगे। पेट्रोल की मसनूआत की तलाश में लोग शहजाद बहुत शुक्रिया। और कराची के मजदूरों ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से बताएंगे महमूद रियाज। जी महमूद। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। हर बजट की तरह इसे भी अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा है, लेकिन देखना है कि ये बजट कितना अवाम दोस्त है। और हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो मजदूर हैं हम उनसे बात करते हैं। इस बजट को भी कहा जा रहा है अवाम दोस्त है, आप मजदूर हैं, सड़क पर बैठकर रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, कितना आपकी उमंगों पे पूरा उतरा ये बजट? जिस तरीके से बजट वफाकी हुकूमत को पेश करना चाहिए था उस तरीके से बजट पेश नहीं हुआ। जिस तरह चीनी, आटा इतना महंगा हो गया, हमारी तो पहुंच से भी दूर हो गई। ये सारी चीज़ें हम कैसे ले सकेंगे जो है ना। आप बताइए कि आप सड़क पे बैठते हैं, अपने 20 बच्चों का पेट पालते हैं, इस बजट से आपको क्या तवक्को थी और क्या मिला है? इससे तो हमें नुकसान ही हुआ है। हम क्या ये दिहाड़ी लगाने वाले, रोज कमाने वाले एक दिन बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? हमारे बच्चे तो भूखे मर गए। ये जैसे कि लोग हैं यहाँ पर, ये मजदूर अगर देखें तो ये वो हैं जो आम पाकिस्तानी है, जो मेहनत कश तबका है, जिनको के रोटी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।